I invite Rotarian Umesh Kumar Jalan, Director Foundation and Compliance Rotary Club Pune Riverside, to introduce and welcome keynote speaker of the day, none other than Group Captain Ashwini Kumar Bhaku, who is a President Awardee. Thank you, President. Guest speaker of the day, Captain Ashwini Bhaku, fellow Rotarians, invitees, principals, teachers, students, and other participants of the today's program. Good evening to you all. I welcome you all to this first program of Sanjeevani. Today's topic is on emotional wellness. We normally take care of our physical health, but generally we overlook our mental health. I would say that without taking care of our mental health, we are rather unable to take care of our physical health. To get a fair understanding on the subject, today we have with us the learned speaker, Group Captain Ashwini Bhaku. He is alumni of the National Defence Academy, Royal Air Force College, UK, College of Defence Management, Osmania University, and Chennai Universities. He is decorated by the President of India, and he is an ex-fighter pilot of the Indian Air Force. He has commanded a premier fighter unit during the Kargil War. He was the HOD for Center for Leadership and Behavioral Sciences for the Indian Air Force. He has been the visiting faculty for Tata Institute of Social Sciences, conducting courses on counseling skills. Dr. D.Y. Patil, Symbiosis and MGM colleges, conducting sessions on emotional wellness and gender sensitization. He has extensive postgraduate experience and education in psychology with an emphasis in change management, fundamentals of happiness at work, science of happiness, emotional intelligence, motivation, developing the self and executive leadership. Presently, he is practicing as psychotherapist, aviation consultant, and is a trustee of Connecting NGO, a suicide prevention organization. Friends, I welcome the keynote speaker of the day, Group Captain Ashwini Bhaku, to take over from here. I first of all want to thank Mr. Mishra and the Rotary Club Riverside, Pune, for creating such a wonderful opportunity for us to interact with the teachers and also the students at the same time. Very, very honored that today I am talking to the teachers and the students. We are going to cover this little discussion that we have today under 4 heads. Why do we need to talk about emotional wellness? What are the causes of distress? And what are the warning signs? And finally, कैसे इसको handle करें? How do we handle this? But first and foremost, let me talk about what is mental health so that we are clear about the subject. If you notice on the screen, mental health is a state of well-being. That means आप ठीक हो, in which an individual realizes their own abilities, can cope with normal stress and work productively. So basically mental health in short form हम ये कह सकते हैं कि आप mentally fit हो अपना day to day work carry on करने के लिए, and also जो day to day stress आपकी life में आता है आप उसको handle कर सकते हैं और community को contribute कर सकते हैं.
वेलबींग, इमोशनल वेलबींग फिर क्या है? एक्चुअली इमोशनल वेलबींग मेंटल हेल्थ का एक पार्ट है जिसमें फोकस जो है वो है ऑन इमोशन, बिकॉज इमोशंस प्ले अ मेजर रोल इन आवर हेल्थ. सो इमोशनल वेलनेस is about emotions. There is somebody who's writing on the this thing. Can you please stop writing? Okay. Now if you notice, जब हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, जैसे जलान साहब ने भी कहा, हमारे को जब फिजिकल हेल्थ की बात होती है तो वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग. आई मीन, अगर हमारे को कोई चोट लगती है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, फीवर होता है, तो वी वेरी इजीली हेड या तो सेल्फ करते हैं या तो हम खुद मेडिकेशन करते हैं क्योंकि छोटी सी चीज है, और वी गो टू अ डॉक्टर. एंड व्हेन वी गो टू अ डॉक्टर, व्हाट डू वी डू? द डॉक्टर हेल्प्स अस in getting rid of that problem. And once he has helped us in getting rid of that problem, then we can move ahead with our work. But now you look at the other part of it. When we look at the other part of it, it is like a brain. The brain also can be hurt. It can get angry, worried, loss of control, disturbed sleep हो सकता है, confusion हो सकता है. लेकिन कई टाइम ऐसे हो सकता है कि बहुत कुछ करने को आ गया तो ब्रेन ओवरवेल्म भी हो सकता है. बट ब्रेन इज इंटरनल and the physical health is external, though there are certain physical organs inside the body which also we can take care of and which take care of those things. Now मैं एक मिथ क्लियर करना चाहता हूं. जब भी कोई इमोशनल वेलबींग या मेंटल हेल्थ के बारे में बोलते हैं या सोचते हैं, हम कहते हैं समथिंग इज रॉन्ग विद दैट पर्सन. एक्चुअली स्पीकिंग, प्लीज बी क्लियर, नथिंग इज रॉन्ग. इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग to get worried, angry or disturbed. It is like getting a cut or a body pain. So please don't think of mental health or emotional well-being as something, you know, एक जमाने में लोग ऐसे बोलते थे, अगर उनको मेंटल प्रॉब्लम है तो वो फिट नहीं है सोसाइटी की. प्लीज डोंट कंसिडर इट लाइक दिस. आजकल एक सिचुएशन है जहां पे हमें कोविड का सामना करना पड़ रहा है, और जब हम कोविड का सामना करते हैं तो एक ऐसा सिचुएशन है जो कि हमने कभी देखा नहीं है. वी हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस एंड देयरफॉर एक अनसर्टेनिटी है. अभी वी आर स्टार्टेड ऑल वर्किंग फ्रॉम होम, वी आर हैविंग टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अगेन वी आर नॉट यूज्ड टू दिस. तो एक डिमांड हमारे ऊपर डाली गई है, और जब ये डिमांड हमारे ऊपर डाली गई है तो ऑब्वियसली माइंड के अंदर थोड़ा सा तो इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा, थोड़ा सा तो प्रेशर होगा. और ये जो प्रेशर है ये हमारे को वरीड कर सकता है, डिस्टर्ब स्लीप कर सकता है. कई टाइम ऐसे भी लग सकता है कि हम ओवरवेल्म्ड हो गए बहुत कुछ करने को, एंड दैट इज व्हाई वी मे फील वेरी स्ट्रेस्ड. सो मेंटल हेल्थ को प्लीज डोंट थिंक ऑफ इट as something which is totally out of our purview. It is part of us. Need for emotional wellness. Now let me see what is the need for emotional wellness. देखिए, बहुत से anxiety disorders हो रहे हैं, taking toll of in urbanized. It says one of the topmost 10 reasons are anxiety disorders. लेकिन जब हमारे को anxiety disorder होता है तो it affects our work, it affects our family, और वो हमारी सोशल लाइफ को भी इफेक्ट करता है. हमारा इंटरैक्शन जो हमारे दोस्तों के साथ है, जो फ्रेंड्स के साथ है, जो फैमिली के साथ है, वो सब हमारे को इफेक्ट करता है. एंजाइटी और एंग्शियसनेस, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंजाइटी इज नॉर्मल. जब वो एंजाइटी उसके ऊपर हो जाती है तो वो हर चीज को इफेक्ट करना लग जाता है. लीडिंग कॉज फॉर डेथ, अगर आज का ही आप न्यूज़पेपर्स देखें, and this is specifically for students and teachers, there is a young 19-year-old girl who committed suicide just yesterday, and that was क्योंकि उसको लगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर है नीट एग्जाम देने के लिए.
And then there is a woman in Indore who committed suicide because of a relationship issue, क्योंकि उनके husband जो थे वो accident में गुजर गए. And this young woman said, नहीं, I don't want to stay alone in this world. Then you take the case of Karan Tiwari, a 27-year-old cricketer. क्योंकि वो IPL में इस time select नहीं हुए, he felt so shattered, he went and committed suicide. Suicide is the biggest youth killer. It is the leading cause of death among 15 to 29-year-old people. We need to take care of this. इसीलिए students और teachers ये बहुत important है in this work. Nearly about 1.35 lakh suicides take place every year. About 20 crore of our population is suffering from mental health issues like depression. Nearly 42.5% of corporate employees are suffering. So we need to keep this in mind. So we are talking about what is the need. We saw just now क्या need है of this mental health. Why we need. Now क्या causes हैं? Let us look at what are some of the causes which take us or make us emotionally unwell. क्यों हो रहा है ये सब? अभी कुछ इश्यूज मैंने आपके लिए कवर करे कि पॉसिबली हमारे को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना पड़ रहा है, और हमारा स्टाइल ऑफ लिविंग चेंज हो गया है, लॉकडाउन हो गया है. बट देयर आर मेनी अदर रीजन एंड मेनी अदर प्रेशर. सम ऑफ दीज प्रेशर्स आर हियर. एक्सपेक्टेशन. टीचर्स और स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझते हैं. एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स. अपने आप से हमें एक्सपेक्टेशंस होती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है. पीयर्स से एक्सपेक्टेशन होती है एंड ऑल्सो एक सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन है. बट एक्सपेक्टेशंस होना क्या गलत है? एक्चुअली अगर हमें एक्सपेक्टेशन ना हो तो शायद हम अपने आप को प्रेशराइज भी ना करें. बट एक्सपेक्टेशन एक लिमिट के अंदर रिक्वायरमेंट है. उसको असेस करके क्या हम अचीव कर सकते हैं. मेंटली तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. वी नीड टू हैव द एक्सपेक्टेशंस व्हिच आर रियलिस्टिक. और इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं, जैसे मैंने अभी कवर किया. कोविड के कारण इन्वायरमेंटल इश्यूज थे. पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ महीने पहले हम लोग बात कर रहे थे बहुत ज्यादा पोल्यूशन की. दिल्ली के अंदर क्लैंप डाउन हो जाता है पोल्यूशन के कारण. पूना के अंदर लकीली इतना क्लैंप डाउन नहीं हुआ, बट पोल्यूशन लेवल्स वर राइजिंग. इन्वायरमेंटल इश्यूज और भी होते हैं कि कहां पे आप पढ़ रहे हो, कहां पे आप रह रहे हो, लोकल इन्वायरमेंट कैसा है, वो भी प्रेशर क्रिएट करता है. कम्युनिकेशन इश्यूज भी हैं. मेनी ऑफ द इश्यूज आर आज की हमारे कम्युनिकेशन इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठ के बात नहीं कर पा रहे हैं. एंड ह्यूमन बीइंग्स आर सच पीपल दैट दे नीड टू मीट ईच अदर. वो आइसोलेशन में रहते नहीं है. हम सोशल बीइंग्स हैं. तो अगर हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, कोलीग्स को मिल नहीं पा रहे, वो एक कम्युनिकेशन इशू क्रिएट कर रहा है. हाँ, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मिलते हैं, व्हाट्सएप पे मिलते हैं, फेस टाइम करते हैं, लेकिन वो फिजिकल जो कांटेक्ट है वो मिसिंग हो रहा है एंड पॉसिबली कम्युनिकेशन इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में आपने देखा हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही. लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ करियर्स के अंदर पे कट्स हुए हैं, कुछ ले ऑफ्स हो रखे हैं. एक्सपेंसेस आर राइजिंग, बट एम्बिग्विटी हो गया है. सो फाइनेंशियल इश्यूज कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर. कंफ्यूजन, स्पेशली फॉर स्टूडेंट. क्या करियर चूज करें, किस साइड में जाएं? आजकल इतनी चॉइस हो गई है कि द चॉइस इटसेल्फ इज कॉजिंग कंफ्यूजन. कोविड तो कर ही रहा है. एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी. क्या करें, क्या होगा कल, वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, वैक्सीन इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा,
ये कब तक चलेगा? गवर्नमेंट क्या कर रही है, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? सो दिस एम्बिग्विटी के साथ हम डील करते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी हम एम्बिग्विटी के साथ डील करते हैं, लेकिन अब वो एम्बिग्विटी लेवल जो है वो बढ़ गया है, और क्योंकि एम्बिग्विटी लेवल बढ़ गया है तो प्रेशर बढ़ गया है। कंपटीशन, रिलेशनशिप इश्यूज, पहले बहुत से लोग कहते थे रिलेशनशिप इशू में टाइम नहीं है, वी डोंट हैव द टाइम टू इंटरैक्ट विद द फैमिली, क्योंकि काम में इतना टाइम लग जाता है। अब रिवर्स हो गया है, नाउ ऑल द टाइम वी आर इन वन हाउस, ऑल लॉकडाउन, बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं, तो उसके अपने यूनिक इश्यूज आ रहे हैं रिलेशनशिप, दोज आर कमिंग अप। लैक ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिलीज तो रही नहीं, वी आर सिंगल फैमिली। अगर जॉइंट फैमिली में होते तो शायद प्रेशर्स कम होते, शायद हम एक दूसरे से बात कर पाते, शायद हम एक दूसरे की सपोर्ट ले सकते। अभी वी आर सच न्यूक्लियर फैमिली विद 1 or 2 चिल्ड्रन, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग इज दिस ऑल्सो सपोर्ट स्ट्रक्चर हमारे लैक हो गए हैं। कल्चर और फैमिली वैल्यूज का इफेक्ट पड़ता है, बट वन ऑफ द मेजर इफेक्ट्स जो पड़ता है, जो प्रेशर क्रिएट करता है, और वो है हमारी पर्सनालिटी। हमारी किस टाइप की पर्सनालिटी है? नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो 2 टाइप की पर्सनालिटी की बात करते हैं, एंड दोज 2 टाइप्स आर हियर, टाइप ए पर्सनालिटी एंड टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी वो टाइप के लोग हैं जो कि बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव, अग्रेसिव, हार्ड ड्राइविंग है, जो रिलैक्स नहीं कर सकते, एवरी टाइम दे आर वेरी टाइम कॉन्शियस, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जल्दी से वो होस्टाइल हो जाते हैं। और टाइप बी पर्सनालिटी है वो, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम ऑफ टाइप बी एंड ऑल्सो एक्सट्रीम्स ऑफ टाइप ए। नॉन कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल पैसिव, अनएम्बिशियस, इजी गोइंग, अनअवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। अब अगर आप नोटिस करें, ये दोनों ही पर्सनालिटी एक्सट्रीम पर्सनालिटीज हैं, and because both of them are extreme personalities, both are going to cause pressure. None of the extreme personalities are okay, because आज अगर देखिए, अगर कोई टाइप ए पर्सनालिटी है, सडनली हमने उसको बांध लिया, उसको घर में बांध दिया है, उसको हम मूव ही नहीं करने दे रहे हैं, वी आर नॉट अलाउइंग हिम टू ऑपरेट और हर टू ऑपरेट। अब वो पर्सन जो कॉम्पिटिटिव है, रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, he would like to go out, but we are not allowing him to go out. On the other hand, if you take the type B personality, abhi wo utne relaxation mein bhi he is not very happy with that relaxation, and because he is not very happy with that relaxation, it is causing problems. So both types are facing issues at the moment. And let's talk about emotions now. Here, see, somebody else has just again done it. It's okay. Just go ahead. We are seeing what we want to see. No problem, जी, don't worry. Okay जी. So here we are, emotions. अब जो emotions है वो दोनों टाइप से हो सकते हैं। एक तो बहुत गुस्सा, बहुत नाराजगी, बहुत वो हो सकता है, and on the other side, it is possible कि हम बहुत खुश भी हो सकते हैं। Emotions पूरा एक स्क्रिप्ट है। Angry, afraid, sick, amused, bored, any type of thing can happen. All right, let's go further. And when we are talking about emotions, and here is something which I want to show you. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared.
it is for us to forget how to love. Aba, 食飯啦。嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 爸爸，你做咩啊，爸？仔，一步一步嚟，我哋一定得嘅。But it's even harder not to love. Ma. Papa, Mama, 食飯。仔，食飯。Family. Emotions are so strong, but they come from two main sources: fear and love. All the negative emotions जो हैं वो fear से आती हैं, and all the positive emotions जो हैं वो love के fountain से आती हैं. But they are so strong that they can control our entire behavior and our entire action. If you notice in that little video clip that I showed you, the power of the emotion, how strong those emotions were. And those emotions can break or make, whether it is a colleague, a family, or any environment. We need to understand our emotions, and we need to look into how to handle our emotions. They can give you a lot of happiness, and at the same time, they can give you a lot of unhappiness in case not handled properly. What is stress? स्ट्रेस अगर मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन दूं जो कि साइकोलॉजी के बेस पे है, इट्स अ फिनोमेना व्हेन यू आर बीइंग स्ट्रेच. अब मेरा नॉर्मल फंक्शनिंग है, अगर आप एक रबर बैंड को देखें, उस रबर बैंड को एक सर्टेन लेवल तक हम स्ट्रेच कर सकते हैं, बट अगर हम उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा डिमांड डाल दें, लाइक ऑन एन इंडिविजुअल, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर ज्यादा डिमांड डाल दें, देन वो उसको ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत है. जब वो ज्यादा स्ट्रेच करता है, दैट इज व्हाट कॉजेज स्ट्रेस. इफ यू स्ट्रेच द पर्सन बियॉन्ड देयर लिमिट्स, अब वो लिमिट कौन तय करता है? एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट लिमिट. बट अगर हम उसको उसकी लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच करेंगे, देन दैट पर्सन विल कम अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस. एंड हियर it could be non-work related. Zaruri nahi hai non-work related. When we say, it could be relationship based, it could be communication issues, financial issues, or it could be also work related. काम का प्रेशर भी है, अचीवमेंट का प्रेशर भी है, और स्टूडेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर नंबर मार्क्स लाने का, टीचर्स के लिए एक गेटिंग, मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज कंप्लीटेड वेल इन टाइम. अब क्या होता है, नॉर्मली व्हाट वी डू इज, नॉर्मली एक स्पेशल डिमांड जब हमारे पे आती है, व्हेन देयर इज अ स्पेशल डिमांड व्हिच कम्स ऑन अस,
we do a situational assessment. हम देखते हैं कि ये डिमांड आई, तो let us assess the situation. If we find that we can meet the demand, no problems, हम ठीक कर सकते हैं, then there is no stress. If we find कि वो डिमांड हमारे को ज्यादा स्ट्रेच कर रही है, देन अपने रिसोर्सेस को हम चेक करते हैं. हमारे पास कोपिंग के लिए क्या है? अगर मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, नो प्रॉब्लम, अगेन नो स्ट्रेस. और अगर कोपिंग के लिए रिसोर्सेज एडिक्वेट नहीं है, देन देयर विल बी स्ट्रेस. देयर इज अ ग्राफ ऑफ ऑप्टिमम स्ट्रेस लेवल. Performance continues to increase as stress goes up. There is a reason for that. When we come under stress, a lot of hormones in our body release होते हैं, और वो हार्मोन्स हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन लेवल जो ब्रेन को जा रहा है वो इंक्रीज करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, एंड हमारी एनर्जी को रिलीज करते हैं. उसके कारण हमारा परफॉर्मेंस लेवल हायर चले जाता है. बट अगर उतना स्ट्रेस नहीं है, तो वी आर इनटू द जोन ऑफ बोर्डम. कई टाइम व्हेन संडेज आर ऑफ एंड देयर इज नथिंग टू डू पॉसिबली, देन वी गेट इनटू द जोन ऑफ बोर्डम. अब ये ऑप्टिमम स्ट्रेस लेवल फॉर ईच पर्सन इज डिफरेंट. जैसे कि अगर एक पर्सन 1 किलोमीटर भाग सकता है और दूसरा पर्सन 10 किलोमीटर भाग सकता है, तो देयर इज अ डिफरेंस. बट द पर्सन हु कैन रन 1 किलोमीटर कैन ऑल्सो रन 10 किलोमीटर अगर वो प्रैक्टिस करता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका ऑप्टिमम स्ट्रेस लेवल, परफॉर्मेंस लेवल हाई हो सकता है. इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव OSL, क्विक एंड इफेक्टिव थिंकिंग, फीलिंग ऑफ वेलबींग, हेल्प्स इंडिविजुअल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट. आपका बेस्ट निकालने में वो हेल्प करता है. वाइडन्स एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, एंड देन वी कम टू द हैप्पी केमिकल. अगेन मैंने अभी आपको ब्रेन केमिकल्स के बारे में या सर्टेन हार्मोन्स के बारे में बोला. सो देयर आर हैप्पी ब्रेन केमिकल्स ऑल्सो, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन. बट नीचे लेफ्ट कॉर्नर में स्लाइड में अगर आप देखें, कोर्टिसोल इज देयर. कोर्टिसोल इज द वन जो ऑपरेशन में आता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं. एंड टू मच ऑफ स्ट्रेस, टू मच ऑफ वरी, टू मच ऑफ एंजाइटी, कोर्टिसोल और एनर्जी हमारी बॉडी में घूमती रहती है, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू और कॉजेज लाइफस्टाइल डिजीजेस. सो कॉजेज ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस अगर हम देखें, प्रेशर्स, एक्सपेक्टेशंस, कंफ्यूजन और टाइप ऑफ पर्सनालिटी. हमारे इमोशंस, दे कैन बी अ कॉज फॉर इमोशनल डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, and even the brain chemicals can do that. Let us now try to see the warning signs. This is where I would like you to please focus, because on my helpline, when I sit on the helpline, when I interact with the parents or the relatives or the friends of people who have lost somebody to a terrible thing like suicide, तो वो एक ही चीज बोलते हैं, काश हमें कुछ साइन दिखता, काश उसने कुछ कहा होता, then we could have helped. But let me tell you, warning signs are available और दिखते हैं, but somehow or the other हम उनको मिस कर जाते हैं. So I want you to pay particular attention to this, because it is not about suicide only. It is about helping somebody who is emotionally possibly under pressure. तो ये वार्निंग साइंस अगर आपको दिखते हैं, तो शायद सिर्फ फर्स्ट एड अप्लाई करने की जरूरत है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. अनरिलेंटिंग लो मूड, इरिटेटेड ऑल द टाइम, सारा टाइम इरिटेशन रहना, मूड बहुत लो रहना, फीलिंग डिमोटिवेटेड, कुछ करने का जोश ही नहीं होना. वी लूज द फीलिंग ऑफ डूइंग समथिंग. पेसिमिज्म, अभी कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसा ही है, ये तो बेकार है. तो वी फील होपलेस. You know, until and unless there is hope, I am a soldier, let me tell you, and I am telling you, let me tell you a small, very, very small story into this. You know,
my father-in-law, his name is Squadron Leader J.D. Kumar. In the 1971 war, he was shot down over Pakistan and he was taken a prisoner of war. From 1971 to today, आप देखिए कितने सालों की हम बात कर रहे हैं, 50 साल के करीब की बात कर रहे हैं. There is still hope that he will come back. Hope keeps us alive. Hope gives us the strength to deal with life even when in the face of adversity. So hope ही अगर चला गया, so then we will not be able to deal with life. Desperation, anxiety, inner tension, all the time remaining worried. Logically देखिए, I will come to how to resolve all this. Withdrawal and sleep problem. Notice अगर आप ये इनमें से कोई चीज अपने आसपास किसी में देख रहे हैं, नोटिस कीजिए. Try to understand क्या हो रहा है उस पर्सन को. Increased alcohol or drug use. Impulsiveness बहुत कुछ आजकल क्या, ओके Amazon पे खरीद लिया, किसी पे खरीद लिया. या रिस्क लेना, नहीं कुछ नहीं होने वाला, लेट मी गो आउट, मैं मास्क के बगैर बाहर चले जाऊंगा, कोविड का क्या है, जाना तो है ही. Unnecessary risks being taken. No patience. Indigestion, vomiting, threatening suicide or expressing a wish to die. नहीं अभी जी के क्या करना है, लाइफ में कुछ नहीं बचा. Sentences like that. Unexpected anger. These warning signs are all visible signs. हम जो प्रोग्राम कई स्कूलों में करते हैं, which we call the PEP program from the Connecting NGO, उसमें हम स्टूडेंट्स को ये वार्निंग साइंस जो हैं उनको देते हैं, so that they can look around them. Somebody who has gone into a shell, that means definitely उसके ऊपर कोई प्रेशर है, something वो डील नहीं कर पा रहा है. So we give these signs, and if you look around you and you see these signs, you need to do something about it. Very important, the warning signs. And now, what is the remedy to this? How do we respond? You know, एक किंडरगार्टन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 3 किंडरगार्टन बच्चों के साथ. उनको ये बॉक्स दिया गया, 2 बटन थे, one is purple colored and one is red colored, and there was a little toy inside one of the boxes. अगर वो red button slide हो जाए तो बॉक्स खुल जाएगा. So the first child was given this box, and that first child tried, सारे बटन लगाए लेकिन उससे वो बॉक्स नहीं खुला. So after some time he just gave up and he sat down and he did not do anything about it. The second child ये देख के कि वो फेलियर हो गया, उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया और वो बैठ के रोने लग गया. The third child picked up the box, tried, और कुछ परमिटेशन कॉम्बिनेशन, बच्चे हैं, जस्ट इमेजिन टॉडलर्स दे आर, एंड कहीं ना कहीं से उससे वो रेड बटन स्लाइड हो गया and out came the toy and he was overjoyed. Now situation देखिए and how 3 different people reacted. The first one नहीं हुआ, ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर नहीं पड़ा. The second one, even without attempting, considered it is not possible. And the third one, even despite seeing a failure and seeing that the other is crying, still attempted and was successful. So, what is the lesson we take from this? Do not give up. One of the remedies is that do not give up when you are under pressure. What is happening is, अभी आपको रास्ता नहीं दिख रहा है. Possibly आपको कुछ सीखने की जरूरत है, मदद लेने की जरूरत है, और तब आपको रास्ता दिख जाएगा. And this happens with everybody. Everybody. चाहे कोई भी एज हो, we all may get stuck in some problem or the other, जब कभी ना कभी हमें रास्ता ना दिखे. That is the time we need to extend ourselves and take help. No comparisons. Comparisons मत कीजिए. If you are operating below your potentials, if you believe that you cannot do, then you are actually operating below your potential. Belief और hope अपने में होना चाहिए, so that we can continue to try.
नहीं तो मदद लीजिए. There is no harm in taking help. Please understand that. Pay attention to emotional pain. I showed you the warning signs. अगर आपको थोड़ा सा भी इमोशनल पेन है, बात कीजिए किसी के साथ. Talk to somebody. Talk to a counselor. Talk to a teacher. And if the teachers are getting underpaid, talk to your colleagues. Talk to the principal. Talk to somebody at home. और लेकिन वो इमोशनल ब्लीडिंग को रोकना बहुत जरूरी है. अगर वो इमोशनल ब्लीडिंग नहीं रुकता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड हाउ कैन दिस बी स्टॉप? कॉग्निटिव थिंकिंग से. कॉग्निटिव मींस लॉजिकल थिंकिंग से. बैठ के पेपर पे लिखिए कि क्या इशू है. ट्राई टू टेक हेल्प अगेन. उसको लॉजिकल पैटर्न में डालने की कोशिश कीजिए. इमोशंस को थोड़े टाइम के लिए साइड पे रख के देखिएगा. You may be able to find a way. If you can't do it, Band-Aid काम नहीं कर रहा है, तो then go to a doctor, go to a psychotherapist, go to a helpline, go to a friend, go to somebody who you can talk to and ask them for help. Failure और rejection होगा ही होगा, कहीं ना कहीं हम सब ने एक्सपीरियंस किया है. Many of the big scientists in the world have seen a lot of things, lot of failures and rejection. But उनके अंदर resilience है. They get up, they fail, they get up again. They fail, they get up again. Build up that resilience. Protect your self-esteem. अपना एक self image बनाइए. अगर एक जगह पे आपका कुछ थोड़ा failure हो गया है, तो that doesn't mean कि you are a loser. आप loser नहीं है. हाँ, वो चीज आपसे नहीं हुई, कोई बात नहीं. अटेम्प्ट दोबारा कीजिए, एनर्जाइज कीजिए अपने को, रैशनल थॉट कीजिए, देखिए कि वो कैसे आपने किया था. शायद उसमें आपकी प्रिपरेशन में शायद कोई इशू था. अगेन, अगर आपसे नहीं हो रहा है, बैंडेड से काम नहीं चल रहा है, तो देन टेक हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स. तो 3 बेसिक स्टेप्स. शो दैट यू केयर. अगर किसी और को मदद करना है, वो तो अपने आप के लिए था जो मैंने अभी कवर किया. तो अगर किसी और को केयर करना है जो प्रेशर में है, तो केयर शो कीजिए, कंपैशन शो कीजिए, सुनिए उनको. आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. बहुत लोग पूछते हैं कि क्या बोलें. आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुनने की जरूरत है. आप सुनिए उनको. आस्क क्वेश्चंस, क्या हुआ, एंड अगर आपसे नहीं होता है तो गेट हेल्प. नाउ दिस इज द एनजीओ दैट आई वर्क विद, कनेक्टिंग एनजीओ. वी आर टोटली non-judgmental, all accepting, and we don't even take your name. We don't want to know your name, so it is totally confidential. But अगर आपसे अपने Band-Aid से नहीं होता है, तो this is one of the places you can ring up. There are many such places, but this is one of the places that you can ring up. Remember, there is always a way. हाँ, शायद वो रास्ता अभी आपको नहीं दिखा है, but रास्ता है. The other thing I want to talk about is gratitude. In all this जो भी हो रहा है, we need to understand what is gratitude. ये एक रिसर्च किया गया था on gratitude by Robert Emmons, और Robert Emmons ने ये रिसर्च from age group of 8 to 80 किया था, and these are the effects. अगर हम grateful हैं for what we have, the opportunity to learn, the opportunity to give, the opportunity to share, the opportunity to be with our family, the psychological effects are very high. High levels of positive emotion, we are very happy. The physical effects are very high. हमारा immune system बढ़ता है, हमारा blood pressure lower होता है, we sleep longer, and similarly our social is much better. We are more helpful and generous. We are more compassionate, more forgiving, and we feel less lonely. So gratitude, when you are in emotional pain, when you are grateful for what you have, अगर आप वो सोचें तो वो first aid का काम करता है. It works as first aid. So today what we talked about is what is emotional wellness, what are the causes of distress, because बहुत से causes होते हैं distress के,
एंड इमोशनल वेलनेस इज वेरी सिंपल, जैसे फिजिकल वेलनेस है वैसे ही इमोशनल वेलनेस है. उसको लेट अस नॉट मेक इट इनटू टू बिग एन इशू, बट लाइक फिजिकल, इमोशनल वेलनेस नीड्स अस टू टेक केयर. उसको इग्नोर मत कीजिएगा. जब आपके हाथ में छोटी सी चोट लगती है, आप उसके ऊपर बैंडेड लगाते हैं, वो ब्लड को रोकते हैं. सिमिलरली अगर छोटा सा वरी आपको रोज वरी कर रहा है, कंटिन्यूसली वरी कर रहा है, आपको सैड बना रहा है, तो कुछ कीजिए उसके बारे में. डोंट लेट इट बी. ऑल द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रेस कैन नॉट बी रिमूव्ड. स्ट्रेस कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर आएगा. वी नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल इट. वार्निंग साइंस देखिएगा, ध्यान रखिएगा अबाउट द वार्निंग साइंस एंड रेमेडीज जो मैंने कवर करी. अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं फंस गए हो, आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो प्लीज गो एंड आस्क फॉर हेल्प. बहुत से हम लोग हेल्प नहीं मांगते. वी आर वेरी शाई टू आस्क फॉर हेल्प. हमें लगता है कि हमारा सेल्फ इमेज कम हो जाएगा, मेरा स्टैंडिंग कम हो जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड, जब हमारे को फिजिकली कोई प्रॉब्लम होता है तो हम डॉक्टर से पूछते हैं ना, उससे हमारा कोई स्टैंडिंग कम नहीं होता है. तो सिमिलरली अगर हमें इमोशनल कोई इशू है तो पूछ लीजिए, टेक हेल्प. आपका कोई स्टैंडिंग कोई कहीं कम नहीं है. प्लीज थिंक अबाउट इट. ये एक मिथ है, ये एक पॉइंट है जो दुनिया ने फैला रखा है कि अगर इमोशनली वेल है, अनवेल है, तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू. नथिंग इज रॉन्ग विद यू. इट इज वेरी वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल. So that brings me to the end of today's discussion. Once again, I want to thank Colonel Mishra and the Rotary Club Riverside for this opportunity. And I want to thank all the participants who have joined in today for giving their valuable time to come here and listen. Thank you very much, Colonel Mishra. Over to you. Yeah, thank you very much for question and answer session. I would like to request Sanjay Merchant, club admin and director program, to take over. Over to Sanjay. Yeah, thank you, Colonel sir. Umesh. सर, जब निगेटिव इमोशंस में somebody is coming, तो उसको मालूम है कि by diverting and going into the positive mode, he can get out of the negative emotions. But उसको प्रैक्टिस करना, उसको एडवाइज करना बहुत इजी है. knowing is also easy, but practicing and changing the direction to the positivity often one finds to be difficult, and it's a slow process. So how to deal with that situation, I want an advice from you. तो जी देखिए, नेगेटिव इमोशंस विल हैपन एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर हमें पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है कि पॉजिटिव हो जाओ. कहने में बहुत आसान है पॉजिटिव हो जाओ, जैसे आपने कहा, बिल्कुल आसान. लेकिन ये टाइम है, यू हैव टू रियलाइज कि अभी वो बैंडेड काम नहीं करने वाला. जो वरी है वो थोड़ा सा लॉजिकल सोल्यूशन के साथ काम नहीं करने वाला, वो नहीं जाने वाला. सो क्या करना है हमारे? This is the time you need to discuss this with somebody else. और किससे डिस्कस करें? देखिए, हमको ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किससे डिस्कस करें. जैसे हमारे एनजीओ का एक सॉर्ट ऑफ मंत्र है. एक तो हम जज नहीं करते. आपका जो भी प्रॉब्लम है, आई एम नोबडी टू जज यू एज अ पर्सन. सो गो टू समबडी हु इज नॉट गोइंग टू जज यू. अगर आपको वो जज नहीं करेगा तो वो आपको सुनेगा. इट विल गिव यू द टाइम टू टेक आउट द नेगेटिव इमोशन. नाउ ये जो फर्स्ट एड वाली रेमेडी हम नहीं करेंगे, उसमें क्या है, हमको वो प्रॉब्लम तक जाना है. व्हेन वी गो टू द प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम को जो बाहर वाला बंदा है, जो आपको जज नहीं कर रहा है, व्हाइल लिसनिंग टू यू, यू विल कम अप विद सम सॉल्यूशन, सम थॉट्स, and he will help you to crystallize those thoughts. और फिर ये करने के बाद में एक स्टेप इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे आपको एक बडी सिलेक्ट करने की जरूरत है. somebody you can trust. Now it could be a psychotherapist, it could be a doctor, it could be a helpline itself. क्योंकि देखिए, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें किसी का हाथ पकड़ के जाने की जरूरत पड़ती है. तो जब हम किसी का हाथ पकड़ के आगे जाते हैं
So then slowly we become strong enough to be handle the negative emotion. इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप अपने वार्निंग साइन देख रहे हैं कि मुझे ये सब हो रहा है, अब मैं अब पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए जाता हूं, वर्क में इम्बॉस हो जाता हूं, थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, बट वो वापस आ जाते हैं और मैं पॉजिटिव रह नहीं पा रहा हूं. So that is the time to take help. That is the time to take a buddy with you and move with the buddy. Now, buddy could be a doctor, a psychotherapist, a helpline, or a very close friend जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, रिलेटिव हो सकता है, कोई भी जिसको आप ट्रस्ट करते हैं और जो आपको जज नहीं करता. The only way to move out of that, see, it takes about 45 days for a habit to form. तो 45 दिन के लिए आपको नेगेटिव से पॉजिटिव सोचने के लिए कोई ना कोई साथ चाहिए. अकेले करना थोड़ा मुश्किल है, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आता है. सो यू नीड हेल्प टू गो विद समबडी. दैट इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड. Thank you, sir. Yeah, we have Kalyani Raut of 8B. Could you ask your question, please, or should I ask? Kalyani, you can ask the question directly. Kalyani? Okay. My question is how to get rid of stress. Okay, Kalyani, thank you very much for the question. Yes, this is something that we deal with every time. Please understand कि जो stress होता है वो कोई ना कोई कारण होता है उसके कारण स्ट्रेस का. That means आपके ऊपर कोई ऐसी डिमांड डाल दी गई है तो पॉसिबली आपकी कैपेबिलिटी से ऊपर है. अब उस डिमांड को कैसे मीट करें? दो चीजें हैं, या तो हम रीलर्निंग करें, एक्स्ट्रा स्किल लाएं, कुछ सीखें जिससे कि हम वो डिमांड को मीट कर सकें. और अगर वो हमसे मीट नहीं हो रही है तो हम दूसरे पर्सन की हेल्प लें. इसको लॉजिकली अगर हम लिखा जाए, स्ट्रेस क्या है? जब आपको एक्सटेंड कर दिया, इतना खींच दिया है कि आप अभी अपने एक्सट्रीम पे आ गए हैं, तो धीरे धीरे उसको छोड़ने की जरूरत. अब वो कैसे छोड़ेंगे? एग्जाम्स आ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसको मैं कैसे हैंडल करूं? ब्रेक्स लीजिए, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने की जरूरत है, उसमें आपका फोकस भी बढ़ेगा. एंड एक पीरियड के लिए हम स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, बट एवरी टाइम के लिए हम हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते. उसको छोड़ने की जरूरत है. जो आपको अपने से एक्सपेक्टेशंस है उनको देखिए कि वो जेन्युइन है कि नहीं. बट वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू गेट रिड और रिड्यूस द स्ट्रेस इज एक्सरसाइज. जब भी आप बहुत 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 स्ट्रेस में आए, एक्शन लीजिए, उठिए अपने सीट से, go out and play for about 5-10 minutes, 20 minutes, and you will see कि आपका स्ट्रेस लेवल नीचे होगा. इट विल रिड्यूस. खत्म नहीं होगा, रिड्यूस होगा. स्ट्रेस कभी खत्म नहीं हो सकता. एक्चुअली एक स्टोरी है, शिव खेरा जी ने ये स्टोरी सुनाई थी और उनकी बुक में भी है, यू कैन विन में. जब किसी ने उनको पूछा कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए कि किसी में प्रॉब्लम ही ना हो और स्ट्रेस ही ना हो, तो उन्होंने, शिव खेरा जी ने उनको कहा कि ऐसी जगह तो वही है, वही लोग हैं जो या शमशान में हैं या इस दुनिया में नहीं. ऐसे ही वो लोग हैं जिनको कोई स्ट्रेस नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं. तो हम ऐसे नहीं बनना चाहते. वी वांट टू लिव, तो वी हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस. वी हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. तो स्ट्रेस को अपनी पार्ट का लाइफ का पार्ट बना लीजिए. डरिए मत उससे. अगर आज आप 10 किलोमीटर भाग नहीं सकती हैं, कोई बात नहीं, आज 200 मीटर भागिए, कल आप 10 किलोमीटर भाग सकेंगी. देयर विल बी नो प्रॉब्लम, यू विल बी एबल टू डील विद स्ट्रेस. आप सोचिए, मैं सोल्जर हूं, जब मैं वॉर में जाता हूं तो क्या मुझे स्ट्रेस नहीं होता? मुझे स्ट्रेस होता है, लेकिन मैं वो स्ट्रेस के बावजूद आगे जाता हूं और फिर भी वॉर में जाता हूं, और उस स्ट्रेस के डिस्पाइट द स्ट्रेस एक्शन लेने से मैं अपनी सिचुएशन को हैंडल करता हूं. तो अगर आपको स्ट्रेस है और अगर आप देखें कि इतना स्ट्रेस बढ़ गया कि आप एक्शन ही नहीं कर पा रही हैं, सो नहीं पा रही हैं, खा नहीं पा रही हैं, तो मदद मांगिए. मदद मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं. प्लीज आस्क फॉर हेल्प. राइट? थैंक यू.
Yeah, we have Antara Badhe. You had a question. Antara, you can ask directly. Yeah, as a parent of Antara Badhe, I am asking Okay. how one can basically find a guide or coach regarding this, regarding the present scenario. Yes, you know, एक Right mentor. person to communicate. How we can find that one? I understand कि आपको जब right person हम बोलते हैं तो we look at 3 criteria basically, जो कि हम अपने NGO में भी देखते हैं जब हम अपने volunteers select करते हैं. Right person वो हो जो कि आपको या बच्चे को जज नहीं करे और बच्चे को वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे वो बच्चा है. That does not mean वो बच्चे को हायर लेवल पे लेके नहीं जाए, लेकिन द पर्सन शुड नॉट बी जो हर चीज पे बोले, कमेंट करे और उसको जज करे. यू नो, व्हेन आई से जज, एक सेंटेंस है जो हम इनएडवर्टेंटली यूज कर देते हैं. लेट अस से एक बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, हम उसको बोल देते हैं यू आर यूजलेस. ये यूजलेस इज अ जजमेंट. यूजलेस इज वी आर जजिंग. एक्चुअली वो बच्चा ने एग्जाम में ठीक नहीं किया है, उसकी जो असेसमेंट हुई एग्जाम में, दैट चाइल्ड फेल्ड और पॉसिबली गॉट लेस मार्क्स. अंडरस्टैंडेबल कि दैट इज देयर, बट यूजलेस नहीं हो सकता उसको. और ये जब हम जजमेंट करते हैं, व्हेन वी से यू आर अ गुड चाइल्ड और यू आर अ बैड चाइल्ड, यू नो आई हैव अ 18-month-old ग्रैंडसन, और आज से ही पेरेंट्स शुरू कर देते हैं यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ बैड बॉय. ये हम जजमेंटल हो रहे हैं. हमारे को जजमेंटल होना. अगर आप कोई मेंटर ढूंढें तो प्लीज लुक फॉर अ पर्सन जो आपको, आपके बच्चे को ऐसे ही एक्सेप्ट करे जैसा वो है, एंड देन टेक द चाइल्ड अप स्टेप बाय स्टेप और उनका ऑप्टिमम स्ट्रेस लेवल, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस लेवल को ऊपर लेके जाए विद अ लॉट ऑफ पेशेंस. तो 2 चीजें आपने देखनी है, that the person should be non-judgmental, should be all accepting, और वो आपके चाइल्ड को चैलेंज करे टू रीच हायर लेवल. यू नो, कूल कैट टाइप नहीं चाहिए हमारे को मेंटर. हमारा मेंटर को हमारे को पुश करना है, चाहे वो धीरे धीरे करे, लेकिन पुश करना है टू अचीव हायर लेवल. अगेन आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल हियर अबाउट माय ओन चिल्ड्रन. व्हेन माय डॉटर्स वर इन 8th and 9th class, they were not very good in maths. And I was not very good in math. मैं सर्विस में था, मेरी पोस्टिंग कहीं और होती थी, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता था. My wife used to try and do everything that was possible for her. We looked around and we found a teacher, a maths teacher. That maths teacher had so much of passion, इतना पैशन था उनको अपने सब्जेक्ट के ऊपर. क्या उन्होंने वो बच्चे को पुश नहीं किया? अरे वो सुबह 6 बजे बुला लेती थी उनको ट्यूशन के लिए. उन्होंने उनको पुश किया, लेकिन शी वॉज पेशेंट. शी डिड नॉट जज द चाइल्ड. एंड टुडे माय चिल्ड्रन आर 30 years old. Both my daughters are in wonderful jobs, all because of that one mentor that we found, and we were lucky to find it. इतना easy नहीं है, लेकिन अगर हम ये 3 principle use करें, that the mentor is non-judgmental, all accepting, you will find that will help your child. Great. We have very little time, so we have some 3-4 people have already asked questions, but I think I'll take the one which has come before, so that Divya Asnani, would you like to ask? Yes, sir. Though we always try to be positive, at some or the other point, we always start getting negative energy. So how should we avoid it? Because sometimes it just feels that the negative energy is directly coming and we are not able to avoid it. Divya, thank you for the question. Please understand that negativity and positivity are both part of our life. We don't have to, देखिए, I showed you a slide which talked about the happy hormones. हम all the time happy नहीं रह सकते. मैं सिर्फ एक ही हार्मोन की बात करूंगा, which is called dopamine. Dopamine is a hormone which is released in the brain जब हम कोई अचीवमेंट करते हैं या एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीवमेंट होता है कि मुझे अवार्ड मिलेगा या मिल गया, तो हम बहुत खुश होते हैं. लेकिन
जब वो अवार्ड मिल चुका होता है, अब आगे क्या, थोड़ी देर के बाद वो जो हार्मोन है, वो जो केमिकल है, वो कम हो जाता है। अब क्या है, हमें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट चीज ढूंढनी है, नेक्स्ट अचीवमेंट ढूंढनी है। तो वो टाइम के लिए जब वो हार्मोन डाउन हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पे नेगेटिव इमोशंस आएंगी, लेकिन वहां पे आपकी जो पॉजिटिव इमोशंस है वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे। आप सारा का सारा टाइम पॉजिटिव और हाई नहीं रह सकते। देखिए, इवन द लाइफलाइन अगर आप देखें, टीवी मॉनिटर्स पे दिखाते हैं, व्हेन दे शो इन हॉस्पिटल बेड, इट्स अ साइन कर्व, अप एंड डाउन जाता है। सिमिलरली इन लाइफ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस जो हैं, दे आर बोथ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि बार बार जो नेगेटिव इमोशंस है उनको कैसे हैंडल करना है, एंड क्विकली उसमें से निकल के अपनी पॉजिटिव साइड पे कितना। योर प्रैक्टिस शुड बी, वो नेगेटिव इमोशंस आपको मिनिमम टाइम के लिए इफेक्ट करे और आप पॉजिटिव की तरफ जाएं, बट इफेक्ट जरूर करेगी। और इफेक्ट करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिकली सोचिए क्या रीजन है, and you will find the solution and you will be back to the positive mood. So don't worry about the negative emotions. कभी गुस्सा आता है, कभी इरिटेट होते हैं, कभी कंफ्यूज होते हैं, it is part of life. It has got nothing to get worried about. You can not always remain positive, but वो गुस्से को कंट्रोल करना, वो कंफ्यूजन को क्लियर करना, जितना जल्दी आप कर पाएंगे उतना you will more be in the positive. Yeah. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. We have one last question. It is from somebody who's private, who doesn't want to be named. Right. She says that, sir, my friend is always depressed on small issues. So any remedies? And recently she has some family issues. So she's feeling to, suicide or die, I understand. And she's only 15 years old. So what do we do to get, when we get hurt on small things? I understand. I am sharing the screen Excuse again. me, I am sharing the screen again. Going to this slide here. Yes, please. Excuse me. Yes, please speak. Yeah, you can speak. Bakuji, just go ahead. Okay जी, ऐसा है कि when she was saying that my friend is always depressed and all that, please understand कि एक तरीके से वो अपने friend को बहुत अच्छी तरह से help कर सकती है, is to always stay with her friend, meaning उसको कहीं अकेला नहीं छोड़िए और अपना उसको आंसर नहीं दीजिए। आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके साथ में रह सकते हैं, आप उसको सपोर्टिव हो सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं। तो विदाउट जजिंग आप उसको सुनिए, सपोर्ट दीजिए। अब अगर आप ये बात जो वो कह रही है अबाउट सुसाइड, अगर वो कंटिन्यू करती हैं, तो इट इज नेसेसरी दैट शी शुड टेक हेल्प फ्रॉम सम प्रोफेशनल। और ये जो मैं हेल्पलाइन आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये उनका नाम नहीं पूछते, दे डोंट वांट टू आस्क यू योर नेम, दे डोंट वांट योर ईमेल आईडी। आप इस नंबर पे डायरेक्टली उनसे कॉल करवाइए, हेल्प हर टू कॉल दिस नंबर। दीज पीपल आर लाइक यू एंड मी। ये कोई साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वहां नहीं बैठे हैं, ये आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, ये आपको सुनेंगे। दे विल हेल्प हर टू सॉर्ट आउट हर इश्यूज। दीज पीपल आर नॉन जजमेंटल, ऑल एक्सेप्टिंग, ये आपको जज नहीं करते हैं। तो माय सजेशन वुड बी, पहले तो एट योर लेवल ऑलवेज बी सपोर्टिव। डोंट ट्राई एंड गिव, डोंट ट्राई एंड थिंक कि कौन सा वर्ड यूज करूं ताकि उनको हेल्प हो। जस्ट बी देयर विद हर, शो दैट यू आर केयरिंग फॉर हर। जब वो आपसे बात कर रही है तो आप बाकी सारी चीजें साइड पे छोड़ दीजिए, फुल अटेंशन उनको दीजिए। एंड इफ यू फाइंड कि उनका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, देन रिक्वेस्ट हर and help her to call this helpline or anybody else who could help her in taking care of this issue. उसको ignore मत कीजिएगा please. Right. Thank you, Ashwini ji. Colonel sir, back to you. Yeah, thank you very much, Sanjay ji and Baku ji. Okay, great. So first of all,
Group Captain Ashwini Baku, thank you very much for such a wonderful talk. In fact, nobody can be better equipped than you, who as a soldier, as a warrior, as a leader, who has seen the things with very close threats. When you are on border, you are defending the country, and without getting into depression or anxiety, you have done your duties so well. And now today's talk is a clear blend of your experience that shows that how one should take his life in what way without stress.